Good morning, students. So let's start with this particular important head in taxation there, that is perquisites. What we have seen already is nothing but allowances there as one of the most important part of the salary there. And before allowances, we have seen that basic salary, bonus, fees, commission, advance, and arrear salary are always fully taxable. In allowances, students, we have seen fully taxable allowances, fully exempted allowances, partly taxable allowances, and partly exempted allowances. Even we solved few of the sums on that. Hope you have done your homework for the same so that you can get perquisites very properly and we can enjoy this particular journey onwards as well. So let's see what is perquisites. Perquisites is a very interesting term, students. Perquisite is nothing but the benefits which are provided over and above cash salary by the employer to the employee are called as perquisites. So what is perquisites, students? Perquisites are nothing but over and above salary benefits, over and above cash salary benefits provided by the employer to the employee. For example, a house along with the domestic servants, maybe a furnished house along with the domestic servants provided by the employer to the employee. Cost will be borne by the employer and obviously benefits are enjoyed by the employee. Along with that, a car along with driver, petrol, and each and everything, cost is borne by the employer and benefit is enjoyed by employee. Along with that, you can say that any medical facility, any educational facility for the employee children where it is paid by the employer and enjoyed by the employee and family members. So perquisite is anything which is provided at free of cost and it is an extra benefit or the benefit which is given by the employer to the employee over and above cash salary. That is called as perquisite. So same is given here. So we cannot restrict perquisites, my dear. Do remember that perquisites are nothing but the benefits which are provided over and above cash salary by the employer to the employee. It may be in kind or it may be in cash, but for taxation purposes, do remember perquisites need to be always expressed in terms of money. Now, how the taxability of the same is going to be there? Perquisites are considered as very much part and parcel of the income from salary and these are taxable in the hands of employee considering as salary benefit. तो perquisites salary benefit बोल के employee के हाथ में ही taxable माने जाते हैं, तो याद रखिए perquisites are considered taxable in the hands of employee and these are absolutely taxable in the hands of employee and that is how the tax treatment of perquisite is going on. Now there are different rules for perquisite. Earlier perquisites were taxable in the hands of employer before 2007 and that was fringe benefit tax or it was called as FBT. इसको fringe benefit tax या FBT बोला जाता था, which was supposed to be paid by employer before 2007. But after 2007 onwards, income tax says that perquisites are enjoyed by employee and hence tax should also be paid by employee only. Perquisites enjoy भी employee करता है तो tax भी employee नहीं भरना चाहिए, इसलिए perquisites पे employee tax भरेगा considering it as part and parcel of income from salary. So let's see perquisites what is given. The term perquisites known famously as perks. जो perquisites term है उसको perks भी बुलाते हैं. Obviously it is not the chocolates there, it is different from that. Perks means any benefit to an office or position in addition to salary or wages. तो आप जो भी पोजीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करते हैं उसको जो आपको बेनिफिट दिए जाएंगे आपके सैलरी और वेजेस के साथ, दैट इज कॉल्ड एज perquisites. As I already told you that these are the benefits over and above cash salary given by the employer to the employee. Perk refers to personal advantage. ये perks क्या होता है? एक personal advantage होता है. It may be in cash or it may be in kind. Any perks given in kind should be measured in terms of money. कोई भी perks जो काइंड में देते हैं उसको भी हमें पैसे के फॉर्म में मेजर करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसका टैक्सेबिलिटी पैसे के फॉर्म में लेना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ. लेट्स सी perquisites डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2. perquisites उन्होंने अलग अलग दिए. नंबर 1, रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर. दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स इसमें, एक अनफर्निश्ड और दूसरा फर्निश्ड और उसमें भी अलग से टाइप होता है. दैट इज हाउस एट प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल. तो इतना हमें सारा देखना है. Next is house at concessional rent provided by the employer, which I just told you about. Value of any benefit or perquisite or at the same time amenity granted by the employer free of cost and that is nothing but at concessional rent, club bill, hotel bill or LIC premium, income tax. ये सब कुछ employee का है, भर employer रहा है. मतलब बिल फटेगा एम्प्लॉयर के नाम पे, एंजॉय करेगा एम्प्लॉई. दैट इज कॉल्ड एज perquisites. ऑब्वियसली ये सबको नहीं दिए जाते बेटा. Perquisites are given to the key employees
the persons who are not supposed to leave the organization, तो organization चाहता है कि इनको किसी भी तरह से बना के रखे, as these are the key people in the organization, and that is how perquisites are offered to them. Next is water, gas and electricity bill. Obviously it is enjoyed by employee, bill is paid by employer. Legal expenses of employee relating to his or her personal affairs, and it is paid by employer. That is again perquisite. And value of any other benefit, fringe benefit as may be prescribed. Fringe benefit का मतलब perquisites होता है. Fringe benefit and perquisites are used synonymously with each other. So let's see the taxability of perquisites now. Now who specified employee and all those things are not required. We can start from here only. Perquisites are of two types only here. वैसे तो यहाँ पे टैक्सेबल फॉर ऑल और एग्जम्प्टेड फॉर ऑल दिया है, एंड देन एग्जम्प्टेड फॉर स्पेसिफाइड. लेकिन अपन दो ही कैटेगरीज करेंगे स्टूडेंट्स. पहला करेंगे हम टैक्सेबल फॉर ऑल और दूसरा करेंगे एग्जम्प्टेड फॉर ऑल. वी डोंट नीड दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. आजकल इसकी कोई जरूरत होती नहीं क्योंकि आजकल हर बंदा स्पेसिफाइड ही है. सो लेट्स हैव ओनली टू कैटेगरीज, दैट वन इज टैक्सेबल फॉर ऑल एंड अनदर वन इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल. तो अब हमें देखना है कि कौन से perquisites टैक्सेबल होते हैं और कौन से perquisites exempted होते हैं. सबसे पहले टैक्सेबल देखते हैं एंड लेट्स सी द लिस्ट फॉर देम. सो टैक्सेबल फॉर ऑल में क्या दिखा है? इट इज रेंट फ्री हाउस, फर्स्ट इज फर्निश्ड हाउस एंड सेकंड इज अनफर्निश्ड हाउस. तो ये सबके लिए टैक्सेबल है. फिर एम्प्लॉय का यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है. तो सबसे पहले कौन सा आता है? रेंट फ्री हाउस, अनफर्निश्ड हाउस एंड सेकंड इज furnished house. So this is the list given. Let's go for the list and then we can see the taxability of one by one, because there are a number of rules and interesting rules. Second, house at concessional rent. Concessional rent का मतलब क्या है? Employer ने घर दिया है employee को. If such house is going to be taken from the market by the employee, rent for such house is rupees 1 lakh per month. जो घर employer ने employee को दिया है, ऐसे घर का रेंट मार्केट में 1 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन employer को सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ दे रहा है. So there is nothing but house provided at concessional rent. मतलब उसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम करके दिया है, and there is how house at concessional rent. Another one, any obligation of employee paid by employer, like club bill, hotel bill, LIC premium, income tax of employee paid by employer. क्योंकि ये obligation किसके है बेटा? ये obligation है employee के, लेकिन दे कौन रहा है? employer दे रहा है. That is how it is a perquisite. Any amount paid by the employer to affect an assurance on the life of the employee. Simply life insurance है, ये LIC है. Next is fringe benefits other given, that is free meal, gift in cash, gift in kind, club facility, credit card, use of movable assets except computers and laptops, interest free loans, and then we are going to see motor car, obviously because we are going to remove this particular specified वाला. यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं रखेंगे बेटा अपन, क्योंकि सारे स्पेसिफाइड है आजकल की डेट में. सो आई कैन से दैट दिस इज नंबर 7 रादर. अगर इसका नंबरिंग चेंज करूँ मैं तो ये नंबर 7 हो जाएगा, एंड दैट वे अराउंड वी कैन कंटिन्यू. सो ऊपर 5, नीचे 6 इज योर मोटर कार, 7 इज डोमेस्टिक सर्वेंट्स. उसमें वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, कुक, एनी पर्सनल अटेंडेंट, obviously paid by employer, enjoyed by employee. Supply of gas, electricity, water and educational facility along with transport facility. वैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अदर देन रेलवेज एंड एयरलाइंस सिर्फ इन्हीं के लिए यहाँ पे दिया है. That is how we are going to see all these perquisites which are taxable. तो ये taxable है स्टूडेंट्स, और ये perquisites हमें वन बाय वन देखने हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. और उसके बाद एग्जम्प्टेड दिए. एग्जम्प्टेड अपन बाद में देखेंगे, पहले टैक्सेबल का लिस्ट खत्म करते हैं, एंड दैट वी कैन सी हियर. परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. एग्जम्प्टेड क्या वैसे भी हमें छोड़ देना है. लेट्स सी रेंट फ्री हाउस एंड सबसे पहले देखते हैं अनफर्निश्ड हाउस. तो इसमें रेंट फ्री हाउस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, मतलब एम्प्लॉय इस पे रेंट नहीं दे रहा है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय. अब इसमें दो कैटेगरी की है, पहली गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट. इन केस ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेंट फिक्स्ड और लाइसेंस फी फिक्स्ड एज पर गवर्नमेंट रूल्स. तो अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. आपने कोई चिंता करने की इसकी जरूरत नहीं है एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. इफ सच हाउस इज गिवन बाय द प्राइवेट एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, इफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, इट इज फुली एग्जम्प्टेड. स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज रहा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा बेटा. हाँ, अगर कोई दूसरे एम्प्लॉयज है तो उसका वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, एंड दैट वे अराउंड यू कैन कंसीडर इट एज टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट. प्राइवेट के रूल्स बड़े इंटरेस्टिंग है. इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर और अदर एम्प्लॉयज, ऑल दोज हु आर नॉट कवर्ड इन वन. तो यहाँ से बड़ा ध्यान से सुनिए बेटा. So what we are seeing here is nothing but perquisites taxable for all, and in that we are going to see रेंट फ्री हाउस, और उसमें हम देख रहे हैं अनफर्निश्ड हाउस. अनफर्निश्ड हाउस में हमने पहला रूल देखा, इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट
employer to the employee, then rent fixed or license fee fixed as per government rules will be taxable. Second, we are going to see that if it is given by private employer to the private employee, then how it is taxable, and if such house is given to the high court or supreme court judges, then it is fully exempted. तो अभी देखते हैं अगर तीसरा वाला जो है प्राइवेट वाला, तो उसमें क्या है. इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर और अदर एम्प्लॉइज, ऑल दोज हु आर नॉट कवर्ड इन वन, सो लेट्स सी दैट हाउ इट इज गोइंग. उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है. इफ डू रिमेंबर, ये टेबल उसमें सबसे जरूरी है स्टूडेंट्स, दैट द टैक्सेबल वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीनिंग ऑफ सैलरी. वैल्यू डिपेंड्स ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड लीज रेंट ऑफ अकोमोडेशन. तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या बेटा, सिंपली मीनिंग ऑफ सैलरी. तो इसमें देखते हैं इनको बोलना क्या है. तीन क्राइटेरिया उन्होंने दिए है. सिटी पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस. अभी 11 के बजाय हमें ऑब्वियसली अभी तक तो 11 चल रहा है, 21 में तो कोरोना था तो सेंसस हो नहीं पाया, अभी तक भी नहीं हुआ है, तो अभी तक 11 ही रेफर करेंगे स्टूडेंट्स. सो देयर आर टू थिंग्स स्टूडेंट्स. नंबर वन, if this unfurnished house is owned by the employer and then provided to the employee, that is criteria number one. And criteria number two, if such unfurnished house is taken on rent by the private employer, rent is paid by the private employer, and then such house is provided by the employer to the employee. तो दो चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिए. such house is owned by the private employer and then provided to the employee, then valuation is dependent on the population of that area or city where such house is provided. And if such accommodation or such house is taken on rent by the employer, rent is paid by the employer, and then it is provided to the employee, then in that case the valuation is going to dependent on two things. Number one is 15% of meaning of salary, and second is lease rent paid or payable for such accommodation, whichever is less. तो वो रूल है, देखते हैं. तो मैंने आपको क्या बोला, there are two things when such unfurnished house is provided by the private employer to the employee. Number one, if such house is owned by employer and then provided to the employee, or such house is taken on rent by the private employer. Obviously rent is also paid by the private employer and house is provided to the employee. तो इसमें valuation देखते हैं कैसे है. So do remember, if such house is owned by the private employer and then provided to the employee, then taxable valuation depends on three things. Number one, एक ही चीज पे डिपेंड करता है बेटा, निर्भर करता है, that is called as population. अब population में तीन क्राइटेरिया दिया है. If, let me repeat the criteria. तो क्राइटेरिया क्या है? Unfurnished house provided by the private employer to the private employee, and such house is owned by the employer. And if such house is provided in a city where population is more than 25 lakhs, for example all metro cities, Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore, Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, ये तो मेट्रो हो गए. और लाइक मेट्रोज जैसे पुणे है, बैंगलोर है, दिल्ली है, सॉरी पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, तो ये सिटी में भी देता है. तो पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, भले ये मेट्रोज नहीं है लेकिन पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, देन टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ सच हाउस इज 15% ऑफ सैलरी. अब ये 15% ऑफ सैलरी क्या है ये हम जरूर देखेंगे. तो क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं. इफ द हाउस इज ओन्ड बाय प्राइवेट एम्प्लॉयर गिवन टू द प्राइवेट एम्प्लॉई इन अ सिटी वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 25 lakhs, then taxable valuation of such unfurnished house is 15% of meaning of salary. Second criteria, if house is owned by a private employer given to a private employee and it is provided in such a city where population is less than 25 lakhs but more than 10 lakh, यानी पॉपुलेशन ऐसे सिटी की 10 लाख से ऊपर लेकिन 25 लाख से नीचे है, then taxable valuation of such unfurnished house is 10% of meaning of salary, that you can see on the table. And third one, if such house is owned by a private employer given to a private employee in such a city where population is less than 10 lakhs or any other places मतलब जहां पे पॉपुलेशन मेंशन नहीं है और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे, लाइक कि 25 लाख के ऊपर है या 10 से 25 लाख के बीच में है, कोई बड़ा स्मॉल टाउन है, तो इन दैट केस ऑलवेज इट इज कंसीडर्ड एज अदर प्लेसेस. In that case, taxable valuation of unfurnished house is 7.5% of meaning of salary, that you can see on the screen there. तो यहाँ पे तीन क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, that if the house is owned by a private employer and then provided to the employee, then taxable valuation entirely depends on the population. If population of the city is more than 25 lakhs, taxable valuation of unfurnished house is 15% of meaning of salary. If population of the city is more than 10 lakhs but less than 25 lakhs, then taxable valuation of such house is 10% of meaning of salary. And last, if the population of such city or area where this house is provided is less than
10 lakh or any other places, then taxable valuation of unfurnished house is only 7.5% of meaning of salary. तो ये तीन चीजें यहाँ पे दी है बेटा, याद रखिए. अब दूसरा और आखिरी जो रूल है, that if such house is taken on rent by the private employer then given to the employee, then taxable valuation is number one, it is 15% of meaning of salary, and number two, it is lease rent paid or payable by employer whichever is lower. तो ये दो ही चीजें बेटा, या तो 15% of meaning of salary या तो lease rent paid or payable whichever is lower is taxable valuation of unfurnished house where such house is taken on rent by the private employer. Naturally rent is also paid by the private employer and house is enjoyed by the employee. So this is what the table you can see here. ये आप इस तरह से टेबल देख सकते हैं बेटा. और आगे देखिए, अब मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या है. इसके पहले हमने मीनिंग ऑफ सैलरी देखा था एचआरए के लिए, उसके बाद देखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए, उसके बाद देखा था हमने पीएफ के लिए, और अब देख रहे हैं अपन मीनिंग ऑफ सैलरी. इवन वी हैव सीन फॉर मीनिंग ऑफ सैलरी हियर वी आर गोइंग टू सी फॉर अनफर्निश्ड हाउस. तो अनफर्निश्ड हाउस में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है बेटा, देख सकते हैं आप. इट इज बेसिक सैलरी. सबसे पहले लिखा है आपने यहाँ देखा होगा, इट इज ऑन द स्क्रीन. बेसिक सैलरी और बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस बट ओनली फॉर्मिंग पार्ट, प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस है उनको भी यहाँ पे स्थान दिया गया है, प्लस ऑल अदर मॉनिटरी पेमेंट. वैसे सारे मॉनिटरी पेमेंट ही होते हैं तो इसको कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं. इट विल रादर कंफ्यूज यू. लेट मी रिमूव दिस. इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा आपके लिए. So basic salary plus DA forming part plus bonus plus fees plus commission plus all taxable allowances plus leave encashment of the current year. Leave encashment का मतलब क्या है, आपको कुछ लीव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होने के बाद, मे बी कैजुअल लीव्स, प्रिविलेज लीव, मेडिकल लीव, ऐसे लीव आप अगर किसी कारण से ले नहीं पाते हैं तो उसके लिए इनकैशमेंट होता है वो लीव्स का एट द एंड ऑफ द ईयर. सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो सच पॉलिसी. तो इन दैट केस यू कैन गेट दिस लीव इनकैशमेंट एंड लीव इनकैशमेंट इज गोइंग टू बी गिवन. अगर वो होगा क्वेश्चन में तो लेना है, नहीं होगा तो नहीं लेना है. So what is the meaning of salary? It is basic salary plus DNS allowance forming part plus bonus plus fees plus commission plus all taxable allowances. तो इनका एडिशन करना है. ये मीनिंग ऑफ सैलरी रहेगा फॉर अनफर्निश्ड हाउस. सो डू रिमेंबर. अब याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो रूल दिए दैट सैलरी डजंट इंक्लूड, क्या क्या नहीं लेना है हमें. DA non forming part or not entering into service or retirement benefits, that is not going to be taken here. Second, all exempted allowances will not be part of this meaning of salary. Value of any other perquisite or fringe benefit which is offered by the employer to the employee, that will also not be considered there. Employer's contribution to provident fund of अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय, किसी भी तरह का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. अब ओनली करंट प्रीवियस ईयर सैलरी इज टेकन इनटू अकाउंट, नो एरियर एंड एडवांस सैलरी अदर देन प्रीवियस ईयर सैलरी इज टेकन. इसका मतलब है आप अगर 21-22 के लिए कर रहे हो कैलकुलेशन तो 21-22 के 12 महीने का सैलरी ही लिया जाएगा बेटा. नीदर एडवांस सैलरी नॉर एरियर सैलरी, ये 12 महीने का ही सैलरी लिया जाएगा, ना 12 से कम ना 12 से ज्यादा. दैट इज हाउ इट सीज दैट ओनली करंट प्रीवियस ईयर सैलरी इज टेकन इनटू अकाउंट, नो एरियर और एडवांस सैलरी इज कंसिडर्ड. सो डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, अनफर्निश्ड हाउस का अगर वैल्यूएशन आपको निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या प्राइवेट है. सबसे पहली चीज गवर्नमेंट है तो वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं. एज इट इज ले लो और उसको टैक्सेबल करो. पर मंथ दिया तो इंटू 12 करो, पर एनम दिया तो एज इट इज ले लो और वो टैक्सेबल रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो उनको पूरा एग्जम्पशन है, दैट इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल. नाउ इफ इट इज प्रोवाइडेड house, such house is provided, that is unfurnished house is provided by the private employer to the employee, then we need to check out such house is owned by the employer then provided to the employee, or such house is taken on rent by the employer then provided to the employee. If it is owned by the employer, then what matters is nothing but population and then meaning of salary. Population more than 25 lakhs, taxable valuation of unfurnished house is 15% of meaning of salary. Population of such city is more than 10 lakhs but less than 25 lakhs, taxable valuation is 10% of meaning of salary. And if population is less than 10 lakhs, then taxable valuation is 7.5% of meaning of salary. And meaning of salary is nothing but basic salary plus DNS allowance forming part plus bonus plus fees plus commission plus all taxable allowances. So that is what we are going to focus as far as this particular thing is concerned. ये जो चीज है तो ये इस तरह से ही फोकस करनी पड़ेगी बेटा, याद रखिए. और अगर such house is taken on rent by the private employer then provided to the employee, in that case taxable valuation is number 1 lease rent paid or payable for such accommodation, and number 2 15% of meaning of salary whichever is lower. So that is what it is given here. तो इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा.
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हाट वी हैव सीन इज अनफर्निश्ड हाउस वैल्यूएशन जो हमने ऊपर देखा। अब देखते हैं फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन कैसे निकलता है। अगर हाउस फर्निश्ड भी है तो सबसे पहले तो उसको अनफर्निश्ड ही मानना पड़ेगा। तो अनफर्निश्ड के लिए तो वही रूल है जो अभी हमने देखे, दैट इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय then it is taken by government rules, that is rent fixed or license fee fixed. For High Court and Supreme Court judges it is fully exempted, and for private employee such house is owned by employer then provided to the employee, or such house is taken on rent by the employer, rent is obviously paid by the employer and house is enjoyed by the employee। उसके हिसाब से अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन लेना पड़ेगा। और अनफर्निश्ड हाउस वैल्यूएशन में हम ऐड करेंगे क्या? नंबर 1, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। If such furniture is owned by the employer then provided to the employee। मतलब फर्निश्ड हाउस बड़ा आसान है बेटा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अनफर्निश्ड वैल्यूएशन रूल निकालना पड़ेगा, अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। और उसमें क्या ऐड करना है? सिर्फ 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। इफ सच फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई। मतलब फर्नीचर अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉय को दे रहा है यूज करने के लिए, तो सिर्फ 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करनी है अनफर्निश्ड वैल्यूएशन के रूल में, और आपका आएगा टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस। अब अगर ऐसा फर्नीचर भी आपने रेंट पे लिया है, देन इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट or actual lease rent paid or payable by the employer for such furniture will be added into the cost of unfurnished house। जो भी आपके अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन आई है बेटा, उसमें आप लीज रेंट ऐड करेंगे जो फर्नीचर के लिए एम्प्लॉय पे कर रहा है या पे करने वाला है, एंड दैट विल बी टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस। और अगर दोनों भी है तो मतलब कुछ फर्नीचर एम्प्लॉयर ने ओन्ड किया है और एम्प्लॉय को दिया है, कुछ फर्नीचर एम्प्लॉयर ने बाहर से रेंट पे लिया है, एम्प्लॉयर ही उसका रेंट भरता है, देन इन दैट केस जो आपने ओन करके दिया है उसका 10% ऐड करेंगे, जो आपने बाहर से रेंट पे लिया है उसका रेंट एज इट इज ऐड करेंगे, दोनों आप ऐड करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस में, एंड देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो इस तरह से ये दिखना है बेटा, आप देख सकते हैं फर्निश्ड हाउस वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस सेम एज यूएफएच and add 10% cost of furniture or full higher charges paid or not, that is paid or payable, दोनों केस में वो ऐड करना है, and then you are going to get taxable valuation of furnished house। इसके बाद आपको मिलेगा taxable valuation of furnished house। कंडीशन देखिए बेटा, if furniture is owned by the employer 10% cost of furniture is added, or if furniture is taken on rent actual rent paid or payable for such furniture is added by the employer। and furniture includes what? रेडियो सेट तो अभी आउटडेटेड हो गए, एलसीडी भी आउटडेटेड हो गया मेरे ख्याल से। हमने ये एलसीडी की बजाय इसको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? वी नीड टू डू इट एज एलईडी। उसके एलईडी रेडियो सेट्स को तो हटा ही देते हैं अपन, इट इज नो मोर इन पिक्चर। सो फर्नीचर इंक्लूड्स एलईडी, रेफ्रिजरेटर, एसी एंड अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। So this is how valuation of unfurnished house is calculated स्टूडेंट्स। अनफर्निश्ड हाउस और फर्निश्ड हाउस दोनों हमने देखा। तीसरा देखिए, अब जरूरी नहीं है हर शहर में एम्प्लॉयर अपना एक घर बना के रखे। तो आप अब्रॉड गए तो वहां पे होटल में रह रहे हैं एंड चार्जेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर, दिस इज अगेन परक्विजिट बिकॉज यू हैव गॉन फॉर ऑफिशियल टास्क देयर। सो accommodation is provided in a hotel from 1st April 2001, this rule is applicable। then in that case 24% of salary paid or payable, that is what clause number 1, meaning of salary is same, that is basic salary plus DNS allowance forming part plus bonus plus fees plus commission plus all taxable allowances। and second you can see actual charges paid or payable to the hotel, और ये दोनों में से whichever is lower लेना है। तो ये जो दोनों रहेंगे, या तो 24% ऑफ सैलरी आप लेंगे, दूसरा लेंगे एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू द होटल बाय द एम्प्लॉयर। ये दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी टैक्सेबल वैल्यूएशन इन केस सच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन होटल। होटल में अगर अकोमोडेशन दिया बेटा तो याद रखना रूल इज 24% ऑफ सैलरी एंड actual charges paid or payable to the hotel by the employer, whichever is lower is taxable as accommodation provided in hotel by the employer to the employee। and last but not least, house at concessional rent। अब concessional rent मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, कोई घर मार्केट में 50,000 पर मंथ की रेंट पे अवेलेबल है, वही घर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है आपको 10,000 पर मंथ की रेंट पे। अब लेना 50,000 है लेकिन वो 10,000 आपसे ले रहा है, मतलब वो कंसेशनल रेट पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब कंसेशनल है मतलब कुछ ना कुछ परक्विजिट है। परक्विजिट का मतलब क्या है? जहां पे आप एंजॉय कर रहे हो और पूरा कॉस्ट एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। अब यहाँ पे पूरा कॉस्ट एम्प्लॉयर बियर नहीं कर रहा बेटा, 50 में से 10 तो आप दे रहे हो, तो वो माइनस करना पड़ेगा बिफोर कॉलिंग इट एज परक्विजिट्स। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, परक्विजिट इज समथिंग विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंजॉयड बाय द एम्प्लॉय एट फ्री ऑफ कॉस्ट।
जब एम्प्लॉय कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करता है तब उसको परक्विजिट बोला जाता है। तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कुछ पार्ट आप पे कर रहे हैं एज कंसेशनल रेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कैलकुलेटेड एज यूएफएच और एफएच, यानी आपको वैल्यूएशन निकालना है। अभी कंसेशनल रेंट वाला भी हाउस होगा तो या तो हाउस अनफर्निश्ड होगा बेटा, या तो अनफर्निश्ड फर्निश्ड होगा, या तो अनफर्निश्ड हाउस होगा या तो फर्निश्ड हाउस होगा। तो अनफर्निश्ड होगा तो अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन निकालिए उनके रूल के हिसाब से। फर्निश्ड होगा तो पहले अनफर्निश्ड निकालिए, फिर 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कीजिए, या लीज रेंट पेड और पेएबल फॉर सच फर्नीचर ऐड कीजिए, या दोनों ऐड कीजिए, फिर फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन निकालिए। तो वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस और फर्निश्ड हाउस जैसे ही आया उसमें से आपको माइनस करना है अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर फॉर सच अकोमोडेशन, क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एम्प्लॉय कुछ बियर कर रहा है तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा बेटा। तो जो भी एम्प्लॉय बियर कर रहा है वो माइनस करेंगे अपन। सो लेस रेंट चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द एम्प्लॉई और लेस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, ये माइनस करेंगे। अगर बचे वाला वैल्यूएशन प्लस आएगा तो टैक्सेबल रहेगा, माइनस आएगा तो नॉन टैक्सेबल। अब माइनस कब आएगा, जब आपका रेंट ज्यादा पे कर रहे हो आप और वैल्यूएशन हाउस का कम है तो ऑब्वियसली माइनस आएगा। और माइनस इज नॉट टैक्सेबल विच इज गिवन हियर, प्लस रेफर्स टू टैक्सेबल एंड माइनस रेफर्स नॉट एट ऑल टैक्सेबल। तो हमने एक ही कैटेगरी देखी बेटा अभी तक, परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल इन द फॉर्म ऑफ हाउस। तो हाउस में सबसे पहला देखा हमने अनफर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड में हमने देखा दो कैटेगरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट में रेंट फिक्स्ड और लाइसेंस फी फिक्स्ड एज पर द रूल्स एंड इट विल बी टैक्सेबल एज इट इज। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज के लिए पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है, तो उनके लिए तो रेंट फिक्स्ड या लाइसेंस फी फिक्स्ड भी टैक्सेबल नहीं होगी। प्राइवेट एम्प्लॉयर को अगर अनफर्निश्ड हाउस दिया देन इन दैट केस हमें दो चीजें फिर से देखनी पड़ेगी, सच हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई, और सच हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर देन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई। इन दैट केस टैक्सेबल वैल्यूएशन इज 15% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी और एक्चुअल लीज रेंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। सो इन दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी टैक्सेबल, एंड इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर and then provided to the employee, then it is, if population is more than 25 lakhs 15% of meaning of salary, if population is more than 10 lakhs but less than 25 lakhs it is 10% of meaning of salary, and if population is less than 10 lakhs or other places it is 7.5% of meaning of salary. Meaning of salary is basic salary plus bonus plus fees plus commission plus all taxable allowances and plus DNS allowance forming part. That is what we have seen. At the same time याद रखिए सिर्फ करंट ईयर सैलरी लेनी है, नो एरियर एडवांस सैलरी शुड बी कंसिडर्ड हियर। सो 12 महीने की सैलरी कंसिडर हो गई, ये सिर्फ अनफर्निश्ड हाउस का। अनफर्निश्ड से फर्निश्ड कैसे जाएंगे, अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन एज इट इज लिखना है, उसमें या तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करना है इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय एंड देन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, और एल्स if furniture is taken on rent and provided to the employee, rent is obviously paid by the employer, then such rental charges are paid or payable by the employer will be added into the cost of unfurnished house, and that will be the taxable valuation of furnished house. Then we have seen house at concessional rent, तो इसमें भी पहले unfurnished का valuation निकालना है या फिर furnished का निकालना है, जैसे दिया वैसे। अनफर्निश्ड दिया तो अनफर्निश्ड निकालो, फर्निश्ड दिया तो पहले अनफर्निश्ड निकाल के फिर फर्निश्ड निकालो, और फर्निश्ड निकालने के बाद रेंट जो कुछ पे कर रहा है एम्प्लॉय वो माइनस करो। अगर बचे वाला आंसर प्लस आता है तो टैक्सेबल, माइनस आता है तो नॉट एट ऑल टैक्सेबल। और उसके बाद हमने देखा इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन होटल देन टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ सच होटल अकोमोडेशन इज 24% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी, और एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द होटल व्हिचएवर इज लोअर इज टैक्सेबल। तो चार तरह के घर हमने देखे, पहला अनफर्निश्ड हाउस, दूसरा फर्निश्ड हाउस, तीसरा हाउस एट कंसेशनल रेंट, और चौथा अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। याद रखना अनफर्निश्ड की भी जब भी शुरुआत करते हैं, अनफर्निश्ड से ही शुरुआत होनी चाहिए घर की। तो शुरुआत जब भी होती है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि सच हाउस इज ओन्ड बाय, सच हाउस इज गिवन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। इससे बहुत रूल वैरी करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी या फिर लाइसेंस फी जो भी दी है उसी के हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। प्राइवेट के रूल अलग है, दैट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, मीनिंग ऑफ सैलरी, एंड सच हाउस इज ओन्ड बाय प्राइवेट एम्प्लॉयर or such house is taken on rent by private employer then provided to the employee. I hope you are going to enjoy this particular valuation. इसके सम तो जरूर देखेंगे बेटा। आगे चलते हैं। There are other perquisites in the form of fringe benefits, small benefits. These are number 1, free meal provided in working hours, taxed if greater than 50 per meal and less amount recovered from the employee. इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा अगर आपके
आपको फ्री लंच या फ्री डिनर दिया गया है, फ्री मिल दिया गया है दिन में एक आध बार दो बार जो भी है, तो ऐसा मिल टैक्सेबल नहीं रहेगा प्रोवाइडेड द कॉस्ट ऑफ सच मिल इज लेस देन ₹50 पर मिल। अब लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय की तो बात ही नहीं आती बेटा, एम्प्लॉय ने कुछ देना ही नहीं चाहिए। परक्विजिट जब बोलते हैं तब वो दे रहा है मतलब वो तो माइनस करना पड़ेगा। परक्विजिट इज व्हाट दैट एम्प्लॉय इज एंजॉयिंग एंड एम्प्लॉयर इज पेइंग। एम्प्लॉय जब पे कर रहा है तो उसको परक्विजिट नहीं बोल सकते और उसको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, अगर आपको रोज ऑफिस में 200 रुपए का मिल दिया जाता है, खाना 200 रुपए पर मिल है, एकदम बढ़िया मिल दिया जाता है, सब कुछ है खाने की इसमें, और आप एंजॉय करते हैं और रिलैक्स रहते हैं, एक टाइम का खाना तो आपका ऑफिस में ही हो जाता है। इन दैट केस अगर 200 रुपए पर मिल है तो 200 में से एग्जम्पशन कितना मिलेगा लॉ के हिसाब से बेटा? एम्प्लॉयर आपको 200 का क्या 2000 का भी खाना दे सकता है रोज, लेकिन उसमें इनकम टैक्स बोलता है सिर्फ एग्जम्पशन 50 रुपए का मिलेगा। सो इट इज, यू कैन से दैट इफ इट इज 2200 पर मिल and how many meals are provided for the whole year? Let's say 200 meals are provided, so 200 into 200, क्योंकि 200 meals multiplied by ₹200 that is what provided, और इसमें exemption क्या रहेगा 200 meals multiplied by 50 per meal which is by income tax there, मतलब 150 रुपए टैक्सेबल रहेंगे पर मिल के लिए। 150 into 200 meals for the whole year, taxable amount will be straight away 30,000 rupees। इस तरह से टैक्सेबिलिटी निकाली जाएगी बेटा। और अगर ये 30,000 फिर से एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर को, मतलब तो परक्विजिट कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इज नॉट ट्रीटेड एज परक्विजिट एंड इट शुड बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। तो यहाँ पे तो ये भी माइनस करना पड़ेगा और बचे वाला वैल्यू रहेगा 0। तो क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, आपको 200 मिल दिए पूरे साल में और एक का कॉस्ट 200 रुपए है, तो एग्जम्पशन मिलेगा 200 इंटू 200 ये दिया है आपको, और एग्जम्पशन मिलेगा 200 इंटू 50, मतलब बचा 150 रुपए। 150 रुपए इंटू 200 मिल्स, सो आपको 30,000 रुपए टैक्सेबल रहेंगे क्योंकि आप एंजॉय कर रहे एम्प्लॉयर का पैसे का मिल। और लेकिन अगर ये 30,000 रुपए आप खुद ही दे रहे एम्प्लॉय बोल के, तो ये 30,000 से माइनस 30,000 करेंगे बिकॉज दिस इज द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय एंड देन टैक्सेबल वैल्यूएशन विल बी 0। सो फ्री मिल, डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, एग्जम्प्टेड अप टू ₹50 पर मिल। फ्री मिल के बारे में याद क्या रखना है बेटा, एग्जम्प्टेड अप टू ₹50 पर मिल, यानी 50 रुपए से नीचे का अगर मिल है और आपको एम्प्लॉयर ने दिया तो उसको तो टैक्स लगने का कोई चांस नहीं है आप पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। 50 के ऊपर अगर देगा तो जो कुछ कॉस्ट रहेगी उसमें से 50 पर मिल आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अब रिमेनिंग अमाउंट जो भी टैक्सेबल होती है उस पर अगर आप पैसा पे कर रहे हो एम्प्लॉय बोल के एम्प्लॉयर को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। सो दैट वे अराउंड इट इज गिवन एज फार एज फ्री मिल इज कंसर्न। नेक्स्ट इज माय डियर गिफ्ट इन कैश एंड गिफ्ट इन काइंड। सो डू रिमेंबर गिफ्ट इन कैश इज फुली टैक्सेबल। याद रखिए बेटा, गिफ्ट इन कैश आर फुली टैक्सेबल। यहाँ पे दिया है देखो, गिफ्ट्स इन कैश आर फुली टैक्सेबल और गिफ्ट्स इन कैश इज फुली टैक्सेबल देयर, एंड गिफ्ट इन काइंड इज एग्जम्प्टेड इफ इट इज लेस देन 5,000 और गिफ्ट इन काइंड्स इज एग्जम्प्टेड इफ greater than 5,000 then it is taxable by deducting 5,000। यानी 5,000 के ऊपर अगर रहा, यहाँ पे लेस देन का साइन होना चाहिए, ये ग्रेटर देन का हो गया, तो यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ मैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट गिफ्ट इन काइंड एंड गिफ्ट इन कैश। ये देखिए, गिफ्ट इन काइंड इज टैक्स्ड इफ ग्रेटर देन 5,000, सॉरी वो बराबर था जो भी था। अगर 5,000 के ऊपर का गिफ्ट है तो टैक्सेबल रहेगा, मतलब उसमें से 5,000 जरूर माइनस करेंगे। सपोज आपको अगर आपके एम्प्लॉयर ने एसी दिया गिफ्ट बोल के और कीमत है 40,000 रुपए की, तो 40,000 माइनस एग्जम्पशन गिफ्ट इन काइंड का 5,000 का टैक्सेबल रहेगा बेटा 35,000। आपको अगर चेक गिफ्ट दिया तो चेक मतलब कैश हुआ, गिफ्ट इन कैश इज फुली टैक्सेबल बाय रूल। आपको अगर कैश गिफ्ट दिया, आपको अगर डिजिटल में वॉलेट में पैसा ट्रांसफर किया, तो इट इज इन कैश एंड इट इज फुली टैक्सेबल। Do remember students, gift in cash is fully taxable, gift in kind is exempted up to ₹5,000, more than that is taxable but after deducting 5,000। So that is what the rule for gift in cash and gift in kind। फ्री मिल का रूल हमने देखा, इट इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹50 पर मिल। क्रेडिट कार्ड एंड क्लब एक्सपेंडिचर जो आजकल की दुनिया में बड़े फेमस है बेटा, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द क्रेडिट कार्ड जो कुछ है, माइनस एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, क्योंकि आपने अगर ऑफिस के लिए खर्च किया है तो आपने खुद पैसा उस पर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रेडिट कार्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस एक्सपेंडिचर डन ऑन ऑफिशियल पर्पजेस माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम
employee. So that is what the taxable rule as far as this particular perquisite is concerned, my dear. तो हमने अभी क्या क्या देखा, गिफ्ट इन कैश, गिफ्ट इन काइंड, फ्री मिल एंड देन क्रेडिट कार्ड एंड क्लब एक्सपेंडिचर. क्रेडिट कार्ड क्लब एक्सपेंडिचर बड़ा आसान है बेटा. आपने अगर सपोज 5 लाख का खर्च किया पूरे साल में ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिट कार्ड से, और ये 5 लाख में से 4 लाख तो ऑफिशियली था, आपने खुद के लिए बस 1 लाख का खर्चा किया है, तो 5 लाख टोटल एक्सपेंडिचर, 4 लाख ऑफिशियल, 5 माइनस 4, 1 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये ऑफिस का परक्विजिट लिया और एंजॉय किया, 1 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. और अगर आपने ये 1 लाख भी वापस दे दिया तो 1 लाख माइनस 1 लाख taxable value will be 0. So what we have seen in today's session, my dear, we have seen taxable value of different perquisites which are taxable for all. Number 1 is house. उसमें हमने 4 तरह के घर देखे बेटा. रेंट फ्री हाउस in the form of unfurnished house, number 1. Second is furnished house. Third is house at concessional rent, and fourth is accommodation provided in a hotel. और इसके साथ ही हमने देखा फ्री मिल, टैक्स्ड इफ ग्रेटर दैन ₹50 पर मिल. 50 रुपये तक तो एग्जम्प्टेड ही मिलेगा, 50 रुपये से ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल. गिफ्ट इन कैश, फुली टैक्सेबल. गिफ्ट इन काइंड इज taxable if it is more than 5,000. And then finally credit card and club expenditure. I hope you are going to enjoy this particular lecture and have a wonderful day ahead. In the next lecture we are going to see, my dear, that is motor car valuation. अगले लेक्चर में हमें मोटर कार का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा. थोड़ा सा इसको ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट परक्विजिट्स अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगले लेक्चर में अपन देखते हैं motor car valuation, which is again perquisite and taxable for all. Thank you and have a wonderful day ahead. God bless you. Bye bye.